یہ ہے کہ ہر بندہ ایسا دیکھا جائے تو اس کی ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، وہ اپنے اعتبار سے جو ہے وہ سوچتا ہے، اور اگر وہ کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہمیں اگر وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی لیکن کسی دوسرے کو اچھی لگ رہی ہے تو کیا ہم اسے بھی غلط ہی کہیں گے یار چونکہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی لہٰذا یہ بھی غلطی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم پہلے آج اپنے اس پورے پروگرام کا ایک باؤنڈری بنا لیں. صحیح. کہ بیسیکلی آج جو پروگرام کا موضوع ہے غلط کیا ہے. جی. تو غلط وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے غلط کہا ہے، جس کو شریعت نے غلط کہا ہے. صحیح. اگر یہ زندگی کا ایک اصول بن جائے نا کہ جس کو شریعت نے غلط کہا، چاہے وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، چاہے وہ مجھے پسند ہے اور مجھے ٹھیک لگ رہا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب اب یہاں میری سمجھ کا قصور ہے یا میں اس بات کی حکمت سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اگر اللہ اور اس کے رسول نے یعنی شریعت نے اس کو غلط کہا ہے، یعنی شریعت کے جو بھی احکام ہیں، تو اب اس کے بعد مجھے اس سے پیچھے ہی ہٹنا ہوگا کہ وہ غلط ہی ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ کچھ چیزوں کو غلط نہیں کہا شریعت نے. صحیح. ٹھیک ہے، اس کی مذمت شریعت بیان نہیں کر رہی ہے اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو میں نہ کروں، وہ الگ بات ہے. مگر کوئی کر رہا ہے اور میں جناب اس کو جو ہے غلط کہہ رہا ہوں تو یہ بالکل درست نہیں ہے. وہ امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا ایک جملہ سننے کو ملا تھا کہ جس چیز کی شریعت مذمت نہیں کرتی اس کی مذمت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بڑا زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے اور ہمیں کہے کیا کر رہا ہے یار، یہ نہیں کرنا چاہیے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے، پھر آپ کون ہوتے منع کرنے والے؟ تو جب شریعت کسی چیز کی مذمت نہیں کرتی تو اب آپ اس چیز کی مذمت کر کے الٹا ایک تو اپنے آپ کو بھی جلا رہے ہیں اور دوسرا ہو سکتا ہے آپ دل آزاری کا باعث بنے، غیبت کا باعث بنے، بدگمانی کا باعث بنے. تو انجوائے کریں، اس کو کرنے دیں جو کر رہا ہے. اگر شریعت نے اس کی ممانعت نہیں کی ہے تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے؟ تو یہ اگر فارمولہ زندگی میں ہو، ہاں جہاں فرض اور واجبات کی بات ہے وہ ایک الگ چیز ہے. ہم اس وقت غلط اور صحیح کی بات اس سینس میں کر رہے ہیں کہ کس چیز کو شریعت نے غلط کہا اور کس چیز کو غلط نہیں کہا. ہماری شریعت نے ایک زندگی بہت آسان کر دی ہماری کہ وہ کہتے ہیں نا ڈوز کی لسٹ نہیں دی ہے، انڈوز کی لسٹ دی ہے. جو کرنا ہے اس کی لسٹ نہیں دی ہمیں، جو نہیں کرنا اس کی لسٹ دے دی ہے. یعنی جو نہیں کرنا وہ عطا فرما دیا، اب اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کرنے کی اجازت ہے. تو اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ کیا کیا منع ہے تو اس پر عمل نہ کریں، باقی سب پر عمل کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یوں زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. تو اب اگر کوئی شخص جیسے اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ یار یہ غلط کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے، حالانکہ اس کو وہ ٹھیک لگ رہا ہے، وہ اس میں خوش بھی ہے، تو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پیمانہ شریعت کا ہوگا. شریعت کہتی ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ غلط نہیں ہے تو پھر کرنے دیں، اسے کرنے دیں اور اس مذمت نہ کریں، ڈی گریڈ نہ کریں، بالکل نہ کریں. ٹھیک ہے. بڑی ریلیونٹ بات ہے آپ نے کہی ہے کہ اگر شریعت اس پر قدغن نہیں لگا رہی، اس کو کنڈیم نہیں کر رہی تو ہم بھی نہ کریں، ورنہ پھر ہم ہو سکتا ہے اس کی دل آزاری کر کے ایک حرام کام کے اندر مبتلا ہو جائیں. ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے اس کے ساتھ رہنا ہے، جیسے گھر میں ہے، بھائی ہے تو اگر ساتھ رہتے ہیں تو بھائی کے ساتھ رہنا ہے، بہنوں کے ساتھ رہنا ہے، گھر میں ہے بچوں کی ماں ہے ان کے ساتھ رہنا ہے. اب ان کے اندر جو ایک مطلب خلاف مزاج جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ کسی کے خلاف مزاج کام کریں گے تو اس کو اچھا تھوڑی لگے گا. تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں یہاں بھی وہی بات آ گئی نا، خلاف مزاج. مثال کے طور پہ مجھے لگتا ہے کہ یار کوئی کھانا نہ کھائے میرے سامنے، تو یار کھانا تو وہ کھائے گا نا، انسان ہے وہ، پانی تو وہ پیے گا. آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ کو اپنے سامنے کوئی کھانا کھاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. اگر وہ کام کر رہا ہے جس کو شریعت بنا کرتی ہے، یعنی وہ بے ادبی کر رہا ہے بڑے بھائی کی، بدتمیزی کر رہا ہے، دیکھیں اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ آپ کو گھر میں جو کچھ اچھا چاہیے نا شریعت نے وہ سب کچھ بیان کر دیا ہے. صفائی ہونی چاہیے، ادب احترام ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، بھائی بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ سارے کام وہ اس کو کرنے چاہیے. اس کے خلاف جاتا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں گے کہ یار اللہ رسول نے بھی منع کیا اور ہمیں بھی تکلیف تو دے ہی رہا ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. لیکن اب بعض اوقات میری عادت ہی ہر چیز کو تکلیف محسوس کرنے کی ہے. ٹھیک ہے، وہ مسکرائے تو مجھے پرابلم، وہ خاموش رہے تو مجھے پرابلم. تو یہ بھی مزاج دیکھنا ہوگا، ہمیں دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ بے شک اگر آپ ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھے بغیر آپ نہیں جی سکتے. اور خاص طور پہ ہمیں جو حقوق شریعت نے بیان کیے، ہم اگر بھائی ہیں تو بڑے بھائی کے حقوق ہیں، ہماری بہنوں کے حقوق ہیں، اگر بڑے بھائی ہیں تو بچوں پر شفقت کا حکم ہے، ماں باپ کا ادب تو سبحان اللہ کتنی احادیث اور آیتوں میں بیان ہوا. تو ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. لیکن اسی طرح جس کا ادب کا مجھے حکم دیا گیا ہے اس کو بھی تو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی مجھے لے کر چلے، وہ بھی مجھے برداشت کرے. تو دونوں طرف کے لوگ اگر اپنے انداز کو لے کر چلیں گے نا، کیونکہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں سلمان بھائی جو جینا، جس کو کہتا ہے جینا تنگ کر دیتے ہیں، حرام کر دیتے ہیں. وہ گھر میں گھر کا
आप फर्द भी होते हैं, अपना भी जीना हराम ही कर रहे होते हैं। डेफिनेटली किसी का तो कर ही रहे हैं, ये बड़ी अपना भी साथ में कर रहे हैं। अहम बात की आपने। वो लोग नहीं समझ रहे होते, वो समझते हैं मेरा रोब है और मेरे कहे बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन इस रोब को बरकरार रखने के लिए आप भी जल रहे हैं। सही। आप अच्छा, आपको प्यार भी नहीं मिल रहा, आपको वो केयर भी नहीं मिल रही, तकलीफ में भी कोई इतना ज्यादा आपके साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि आपने सबको तकलीफें दी हुई हैं। आप प्यार बांटें, आप मोहब्बत बांटें, आप बर्दाश्त करें। आप देखें जब आपके साथ कोई मामला होगा तो सब कितना आपके क्लोज होंगे। तो ये बहुत जरूरी है, वरना वो लोग जो कहते हैं ना मेरा बड़ा रोब है, मेरा बड़ा तोर है, एंड ऑफ द डे लोग परेशान ही होते हैं, वो खुद भी अंदर से परेशान होते हैं। सही। हमें तो मैसेजेस भी आते हैं। पिछले दिनों मुझे एक मैसेज आया किसी दुखियारी माँ का कि मैं अपने शौहर के आगे कुछ कह नहीं सकती, मगर मेरे शौहर ने मेरे बेटे पर इतनी सख्ती रखी है कि वो बागी हो गया है। अब मैं उसको कोई अच्छी बात भी बताती हूँ तो वो मेरे शौहर ने उसे गालियाँ ही देनी है, उसको मारना ही है, उसको हर बात में डांटना ही है। वो कहती, बेचारी माँ कहती है हमारे घर का माहौल मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सोच रहा था कि अब वो माँ जब अपने शौहर के आगे भी बात नहीं कर पा रही, बेटा अपने वालिद के आगे बात नहीं कर रहा, उनसे कोई प्यार मोहब्बत वाला माहौल ही नहीं है, हर वक्त डंडा हाथ में, गालियां मुंह पर हैं। मुझे बताए ना ये कैसा रोब है, ये कैसा घर होगा, कैसे इस्लाह होगी। कहता बच्चा कहता मैं घर में रहना ही नहीं चाहता, मुझे हर वक्त मेरा वालिद अगर जलील ही करता रहेगा तो मैं क्यों रहूंगा घर में। तो ये वो चीजें जो करनी होंगी हमें, और हमें जो शरीयत का एक अंदाज है ना, उसको अगर हम अपना लें तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना। इसमें हम यूं कह सकते हैं सर कि अगर कोई बात गलत अपनी औलाद के अंदर देख रहे हैं, अपने बच्चों में देख रहे हैं, घर वालों में देख रहे हैं, और उस गलत को ठीक करना चाह रहे हैं, तो वो ठीक भी गलत तरीके से ही करना है। बहुत सही बात आपने की कि गलती की बाज़ों का जो इस्लाह का अंदाज होता है ना, वो गलता होता है। वो उससे बड़ी गलती होता है। बच्चे ने पानी का गिलास तोड़ दिया, टूट गया उससे, और हमने उसका सर तोड़ दिया। तो वो तो गिलास तोड़ा था, गलती थी, आपने सर फोड़ दिया, उसका डंडा उठा के मार दिया। अच्छा, सर तोड़ना वाकई तकलीफ दे है, लेकिन बाज़ औक़ात दिल तोड़ना वो उससे ज्यादा तकलीफ है। उसको बाज़ औक़ात कुछ जुमले होते हैं सलमान भाई जो पेवस्त हो जाते हैं इंसान के दिल में, जो भुलाए नहीं भूलते। कुछ बातें ऐसी लोग कर जाते हैं जिनको एहसास भी नहीं होता। तो वो बातें समझनी है कि आपको इस्लाह करनी कैसे है। पिछले दिनों माशाल्लाह निगरान शुरा हम साथ थे एक सिलसिले में, और बड़ी कमाल की उन्होंने बात कही कि अगर मुझे कोई कहे ना कि प्रॉब्लम क्या है माशरे का, आप भी शायद साथ थे उस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा दो ही चीज़ें मुझे नज़र आती हैं कि एक इल्म की कमी और एक तरबियत की कमी। तरबियत नहीं है, वालिद को वालिद बनना किसने सिखाया? वालिद तो बन गए, शादी हुई, बच्चे हो गए, लेकिन वालिद को एज अ वालिद ट्रीट कैसे करना है अपने बच्चों को, अपनी बीवी के साथ रहना कैसे है। आगे जाके बहुएं आएंगी घर में, आगे जाके खानदान बढ़ेगा, तो एज अ वालिद मेरे कौन सा कोर्स किया है, ठीक है ना। ये और एक कोर्स मौजूद है शरीयत में और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। पढ़े तो सही ना, इल्म से दूर रहना है और अपने तौर पे उसूल बनाए हुए, हमारे घर का ये उसूल है। किधर से आया भाई ये उसूल? किधर पढ़ा था आपने? ये कोई आपको बुक मिली? हमारे खानदान का जनाब ये उसूल है। अब उस उसूल में किसी का दिल टूटता हो, किसी का सर फूटता हो, बदलों की आग में खानदान जल रहा हो, जनाब खानदानी दुश्मनियां चल रही हो, उसूल है हमारा। कैसा उसूल है? उसूल वो है जो शरीयत का है, तरीका वो है जो शरीयत का है। तो ये गलत है, ये खानदानी रसूमात, ये खानदानी उसूल, और हर खानदान ने, हर बड़े ने अपना उसूल बना लिया। तो खुदारा अगर हमने अपने घर में खुशियां देखनी हैं, हमने अपनी आने वाली नस्लों को अंदर प्यार देखना है, तो हमें ये बात समझनी होगी कि वालिद कैसे वालिद बनता है, उसका किरदार क्या होता है, औलाद का किरदार क्या है, बीवी का किरदार क्या है। अब सास पहले जो है ना वो बच्ची थी, उसकी शादी हुई, 15-20 साल बाद वही सास बन गई। अब उसने जो उसकी सास ने उसके साथ किया, या तो उसने अपनी बहुओं के साथ वो करना है। ये सास बनते ही उसका अंदाज चेंज हो गया। अरे सास बनने के बाद आपने कब ये कोर्स किया था, कब ये तरबियत हासिल की कि आपको अपनी बहुओं के साथ। अच्छा, ये बहुओं की दुश्मनी जो है बेटे को भी दूर कर रही है आपसे। ये नहीं समझती माँ कि वो बेटा जो मेरे जिगर का टुकड़ा था, मैं उसकी बीवी के खिलाफ रोज उससे समझा रही हूँ, एंड ऑफ द डे वो बेटा भी दूर हो जाता है। फिर किसी के दिल में, ये एक जुमला याद रख लें, किसी के दिल में उतरने का तरीका यह है कि जिससे उसे प्यार है ना, तो मुझसे प्यार करना शुरू। आप किसी के बच्चों से प्यार करें, वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। क्या ये जब भी मिलता है मेरे बच्चों के, उसके बच्चे के बारे में पूछता है, मेरे बच्चों से प्यार करता है। तो आप अगर उसके लव्ड वन, जिससे उसे प्यार है, आप उससे प्यार करना शुरू कर दें, उसकी केयर करना शुरू कर दें, वो आपके करीब हो जाए। आप अपने बेटे को करीब करना चाहती हैं, आप उसकी बीवी का ख्याल रखें। बीवी अगर बेटे के करीब, अपने शौहर के करीब होना चाहती है, उसकी माँ से मोहब्बत शुरू कर दे, क्योंकि बेटा माँ की तरफ यकीनन एक तरह से इंस्पायर होता है, उसकी माँ है वो। तो ये वो चीजें जो समझ नहीं आती लोगों को, और घर टूट जाते हैं। घर टूट जाते हैं। ऐसे रवैये भी बड़ा किरदार अदा करते हैं इफ्तराक के अंदर, इंतशार फैलाने में, नफरत फैलाने में, घर तोड़ने में, आपस में दूरियां
पैदा करने में रवैये भी बड़े कारगर होते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है कि मुझे किसी ने कहा कि अपनी हमशीरा के हवाले से वो उस टाइम ही बता रहा था कि हम बड़े परेशान हैं, और प्रॉब्लम उनका क्या है कि एक प्रॉब्लम ये है कि घर के कपड़े सारे धोने हैं और 7 दिन के कपड़े एक साथ प्रेस करके रखने हैं। यानी 7 दिन के कपड़े एक साथ प्रेस करके रखने हैं। ठीक है, ये उसूल है। वही वाली बात है, उसूल है हमारे घर का। उसूल है। अच्छा, पहनने अब पता नहीं पहले था या नहीं था ये भी कोई पता नहीं। आज बना लिया। बादशाह पढ़ रहा है तो चलो अब बना या कब बना ये अगली बात है। चले पहले से भी था तो भी लेने। 7 दिन के कपड़े एक साथ प्रेस करने हैं और सबके करने हैं, सिर्फ एक के नहीं करने, सबके करने हैं। अच्छा, खाना बनेगा तो खाना जो है वो रोटी जो चाहिए वो तवे से उतरती हुई रोटी चाहिए। तवे पे बिठा देना उनको। अल्लाह अकबर। तो और फिर देखें, एक को 7 बजे चाहिए, दूसरे को 9 बजे चाहिए और तीसरे को 9:30 बजे चाहिए। और इसके बाद फिर जो है वो दोपहर का खाना है ये। यानी वो बेचारा स्नैम भी ये कह रहा था कि हम तो आजमाइश में आ गए हैं कि ये क्या करें, किस तरह इसको रिजॉल्व करें। मैं चाहूँगा अब इस पर भी जो है वो बात करें। ज़ाहिर सी बात है, एक अल्लाह की बंदी है, कोई मतलब हम बेटे की जो है वो शादी की है, बहू घर में आई है, अब वो 7 कपड़े भी साथ में सारे धोए और फिर 7 दिन के कपड़े वो इस्त्री भी करे, फिर हर बंदे को रोटी है उसके अपने टाइम पर और तवे से उतरती हुई रोटी चाहिए। ये पता नहीं मतलब क्या कहेंगे इसको। असल में बात वही है कि अपनी बेटी समझना अगर शुरू कर दें, उसकी भी तबीयत ख़राब होती है, वो भी कभी उसका मूड ठीक नहीं है, और मिलजुल के काम करें। जो काम इससे पहले घर में कर रहा था वो कौन था, ये भी तो गौर करें ना। अगर उस घर में पहले कुछ इस्लामी बहनें मिलकर काम करती थी, सबने हाथ उठा लिया और आने वाली को सारे काम सौंप दिए, तो धोबन तो नहीं लाए थे, नौकरानी तो नहीं लाए थे, हैं भाई। अपनी बेटी समझ के अगर उसको रखें। और दूसरी तरफ वाली को भी ये बात है कि काम करके दिलों में उतरा जा सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात काम करके भी दिल में जगह नहीं मिलती, ऐ भी निकल रहे होते हैं कि आज तुमने ये ठीक नहीं किया तो आज वो ठीक नहीं किया। तो वही बात है कि दोनों तरफ का ख्याल रख के जिंदगी गुजारे, वरना ये चलती नहीं है। ये रवैया ये सब कैसे ठीक होंगे? ये अब ये जो रूटीन बनी हुई है भाई, एक ने 7 बजे रोटी खानी है, एक 8 बजे खा रहा है, एक 9 बजे, एक 9:30 बजे। अजीब बात है। नहीं ठीक है, चले वो फर्क होता है। बाज़ औक़ात किसी की ड्यूटी लेट होती है, किसी को देर से उठना होता है, लेकिन उसका भी एक तरीका है ना कि भाई खाना बना के रख दिया जाए और जो जब उठे अपने हिस्से का खाना ले ले और गर्म कर ले। एक ही औरत बेचारी बार बार आती रहे किचन में और देती रहे, इसमें तो मेरा ख्याल है बहुत जगहों पर पर्दे का भी मसला आएगा। क्योंकि अगर घर के अफराद दूसरे मर्द भी हैं, अब वो हर मर्द को खाना पेश कर रही है, तो भाभी हर किसी के साथ तो मतलब उसका फैमिली का तो हर किसी के साथ तो महरम वाला रिश्ता भी नहीं होता, तो ये भी ख्याल रखना होगा। तो ये सब चीज़ें बात वही है कि बैठ के जो है ना, देखिए इसमें किरदार जो है ना बाज़ औक़ात माँ बाप को ही अदा करना पड़ेगा। बच्चा कैसे बात करेगा अपनी वालदा से कि मेरी बीवी को ये तकलीफ है, ये बड़ों का ही ऐसा। मैं तो कहता हूँ जी बच्चे को महसूस करनी चाहिए। अब आप देखें अल्लाह की बंदी बेचारी, मतलब सारे घर के बर्तन धोए, अच्छा बर्तन भी सारे एक साथ धो के रखने। ये जो बात रह गई थी मुझसे, चले। अच्छा, मैं वैसे इसमें एक हाशिया लगा देता हूँ। हाँ जी, कि ये आपने असल में ना बहू की सुनी है। मसला ये भी होता है हमारे यहाँ, एग्जेजरेशन का भी ऐसा मामला है कि अगर आप किसी की सुने ना कि यार जनाब बड़े भाई ससुराल में जुल्म ही जुल्म है, क्योंकि वो अब मसला ये अब कहूँगा तो शायद हमारी इस्लामी बहनों को बुरा लगे कि इनके अंदर मुबालगा आराई बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है ऐसा ही हो जैसे आप फरमा रहे हो, लेकिन अगर उधर वालों की सुने ना तो वो लगता है कि वो तो जनाब सोई रहती है, काम बहुत थोड़ा करती है। तो लेकिन अगर ये सही है, ये ऐसा बहुत जगह है, हम उन लोगों के लिए यही कहेंगे कि वहाँ जिसको सास ससुर कहते हैं या माँ बाप कहते हैं, वो बैठें और बैठ के उसूल वज़ा करें। और उसूल वही वज़ा करें, एक प्यार मोहब्बत का अंदाज़ हो और दूसरा शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक कि कौन कितना काम करेगा और किसकी तबीयत और मिजाज में कितना काम आसान है। तो उस तरीके से अगर घर का कानून बना लें तो मेरा ख्याल है आसानी होगी। वरना कहते हैं लकड़ी को मोड़ते रहो, एक वक्त आता है वो लकड़ी फिर टूट जाती है और फिर हम कहते हैं पता नहीं बेटे को क्या हो गया, बहू को क्या हो गया, बागी हो गए, छोड़ के चले गए, मुतालबा कर रहे हैं अलग घर लेने का। आपने जीना ही उनका पहले आराम किया हुआ था, तो कहाँ से रहेंगे आपके साथ? बहुत दूर तक साथ चलना चाहते हैं ना, तो हाथ पकड़ कर चलें। धक्के देकर आप जो है ना दूर तक साथ ही नहीं बन सकते। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कॉल्स भी आ रही हैं सर जी टॉपिक के